Welcome back, student. How are you today? So, as you know, the whole what field capacity is what the when the soil hold the all water except the gravitational water. So you can write down here all water except gravitational water. ठीक है? And it is also known as the upper limit of water availability. ठीक है? नाउ अगर इसको फॉर्मुलेट करना है फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू होलार्ड माइनस ग्रेविटेशनल वाटर, और फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू ये क्या है, कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस केमिकली बॉन्डेड वाटर माइनस ग्रेविटेशनल वाटर. सो इन दिस वे वी कैन फॉर्मुलेट द फील्ड कैपेसिटी. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. In the last lecture we discussed about the types of water which is found in the soil and start learning about the some special point. Okay, हमने वाटर कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, होलार्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर पॉइंट्स एज वेल लाइक वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं? The capacity of common soil is approximately 0.01 MPa, जिसको हम -0.1 बार कहते हैं. इसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए वाटर पोटेंशियल. water potential. Okay, water potential is a field capacity of common soil. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं field capacity of common soil. It is about -0.01 MPa और 0.01 बार. ठीक है. Now next is permanent wilting percentage. What is PWP? Permanent wilting percentage. नाउ इसी को हम परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, जिसको हम PWC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. PWP और PWC. यहाँ पर C क्या रिप्रेजेंट करता है? C इज इक्वल टू कोफिशिएंट. Okay, so what is PWP? It is the percentage of water per unit of dry soil. यानी ड्राई सॉइल में जितना वाटर का परसेंटेज होता है उसी को हम परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं. When the permanent wilting percentage, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. It involves the percentage of water
of water per unit of dry soil. Per unit of dry soil. Okay. When the plants growing in it, next point, when the plants growing in it, then what will happen? It undergo permanent wilting. इसी को हम कहते हैं PWP या फिर PWC, permanent wilting coefficient. Now what is the parameter of water potential at permanent wilting? ये लिख लीजिए. Water potential at permanent wilting is equal to minus 1.5 MPa or minus 1.5 bar. Okay. So water potential at a permanent wilting is 1.5 megapascal and 1 megapascal is equal to 10 bars. यहाँ पर अगर बार में कन्वर्जन करते हैं इट इज़ -15 बार्स हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर भी करेक्ट कर लीजिए. 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 बार. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मेगा पास्कल इनटू बार. 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 बार्स. ओके, नाउ हेडिंग डाल दीजिए सॉइल एयर. Soil air. Soil के अंदर एयर का क्या रोल है? The water is important in the soil, as you know already, but the air is also good for the health of root. Okay, so in a good soil, 25% of total volume of the soil is filled with air. ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए गुड सॉइल कंटेन 25% nearly the weight of air, contains 25% of water, of air. जो उनका मास होता है उसमें 25% एयर फिल्ड होती है एंड दिस एयर इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए एयर क्यों नेसेसरी है. एयर इज नेसेसरी फॉर, एयर इज रिक्वायर्ड और essential for the growth and development of
रूट. ओके, अगर रूट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही है तो प्लांट सी डेवलप कैसे हो पाएगा, राइट? दैट इज़ वाई soil air is required for the proper growth and development of root. Next point, the poor soil aeration suppress the root hair development. Poor aeration suppress the growth of root hairs. Okay, as you know already that root hairs are required for the absorption of water and minerals. अगर पुअर ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खास तौर से मिनरल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा. सो लिख लीजिए. एंड it may reduce the absorption of water and mineral. Okay, so that is why air is important in the soil. So this is all about the role of soil air. Okay, now next heading आ लीजिए, the responses of abiotic factors. Responses to abiotic factor. Okay, responses to abiotic factors. Now different environmental conditions prevail at different period of time. हर जगह different environmental condition पाई जाती है और उसकी वजह से जो factors हैं वो अलग अलग तरीके से influence करते हैं, and these factors are integrated. ठीक है. Now the maintenance of constant internal environment by an organism in its body despite drastic change in the external condition is called homeostasis. तो आपको जैसे पता ही है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं. अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ इंटरनल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है अगर वो बदलने लगे तो वो कंडीशन होम्योस्टैसिस नहीं कहलाती. ठीक है. तो इन स्पाइट ऑफ ड्रास्टिक चेंज अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उस कंडीशन को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस. हेडिंग डाल दीजिए, होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस इसमें लिख लीजिए द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है. by an organism in its body
in its body despite drastic change drastic change in external condition. समझ में आ गया? दैट मीन्स अगर वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में, यानी सर्टेन अमाउंट, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया 10, 15 या उससे भी कम 1 to 5 के आसपास, तो समहाउ हमारी बॉडी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं होने देती. बट अगर लगातार टेम्परेचर डाउन होता रहे तो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स हैं, हम उसका सहारा ले लेते हैं, लाइक वूलन क्लॉथ्स या हीट. ठीक है, सो ये रेंज जिसमें हम 10-15 डिग्री सेल्सियस लेकर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पूरे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है. और इसीलिए जो मैमल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से अनअफेक्टेड होते हुए अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वाई होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट, the biochemical reactions and physiological functions proceed maximal efficiency in the presence of internal environment that increase the overall fitness of the species. जो भी species, जो भी environment में पाए जाने वाले organism हैं, वो जितना physically workout करते हैं, यानी internal biochemical reaction and external physiological function, इन दोनों के एक्यूमुलेशन से जो इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल होती है. राइट, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में. नेक्स्ट पॉइंट, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड physiological function. Physiological function proceed maximal efficiency. Proceeds maximal efficiency. Maximum efficiency in the presence of internal environment. Presence of internal environment. Okay, so in this way it increase the efficiency. Okay, and ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी इंटरनल जो फिटनेस है, यानी ओवरऑल इट इंक्रीज द फिटनेस ऑफ द स्पीसीज. इट इंक्रीजेस द फिटनेस ऑफ स्पीसीज. ओके, और फिटनेस ही एक तरीका है जिससे हम एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस कर सकते हैं. अभी इस कोरोना पीरियड में वही सक्सेसफुल है जिसके अंदर जिसका इम्यून सिस्टम बूस्टअप है. ओके, और इसके लिए वॉकिंग, फिजिकल फिटनेस इज़ रिक्वायर्ड, इंटरनल के साथ साथ फिजिकल भी. राइट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज सम मेथड टू टॉलरेट द स्ट्रेसफुल कंडीशन. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो टॉलरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया होम्योस्टेसिस, वैसे और भी प्रोसेसेस हैं, वन बाय वन लिखते हैं.
एक तो हो गया होम्योस्टैसिस, नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स ये क्या होता है? सेवरल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस बाय थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये पाया जाता है मैमल्स के केस में। तो हम क्या करते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन का सहारा लेते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो हम एक्सेस अमाउंट में वाटर लेते हैं, जैसे एवापोरेशन होता है बॉडी के सरफेस से तो कूलिंग मिलती है। तो दैट इज़ हाउ वी रेगुलेट द टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज known as regulation of body temperature। इसमें लिख लीजिए some organism able to maintain their internal constant internal atmosphere by फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड दूसरा होता है बाय ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये दो मेथड्स पाए जाते हैं जिससे हम इंटरनल एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट रख सकते हैं और जिनमें ये क्षमता पाई जाती है उसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल मैमल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बर्ड्स हैं उनमें भी ये क्षमता पाई जाती है, बर्ड्स। नेक्स्ट, बर्ड्स के अलावा कुछ ऐसे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं जो रेगुलेटर का काम कर सकते हैं। तो लिख लीजिए फ्यू वर्टिब्रेट्स and some invertebrates। ओके, ये क्षमता मैमल्स में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। सो दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। ओके, अभी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। दैट इज़ वाई द मैमल्स आर सक्सेसफुली रिसाइडिंग ओवर देयर। अगर यहाँ पर आपको मैमल्स गुड क्वांटिटी में दिखाई पड़ते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होम्योस्टैसिस का मेंटेनेंस। ठीक है, जो मैमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए कन्फॉर्मर्स। ये क्या होते हैं? Actually, these organisms are unable to maintain their constant internal body environment। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को
कांस्टेंट नहीं बना पाते. फॉर एग्जांपल 99% एंड प्लांट, 99% ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स जो apart from the avians and mammals, they are unable to maintain their internal environment. Okay, तो उन्हीं को हम conformers कहते हैं. ठीक है. And the efficiency of later is reduced. धीरे धीरे उनकी efficiency भी कम होती जाती है as per change in the atmospheric condition. ठीक है. So that they lived in अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन. तो कन्फर्मर्स में लिख लीजिए दोज 99% एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोज एनिमल एंड प्लांट्स हु आर unable to maintain its constant internal environment are known as conformers. ठीक है. इसके बाद आता है पार्शियल रेगुलेटर्स. हेडिंग डाल दीजिए पार्शियल रेगुलेटर्स. ये क्या होते हैं? सम ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो अपने बॉडी की क्षमता को या बॉडी में एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने आप को या अपने फंक्शन को रेगुलेट कर सकें. उनको हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स. ये कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं. देन दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर्स. लिख लीजिए सम animals have capacity to control or regulate the body function known as partial regulators. ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं. इसका एग्जाम्पल है क्रेफिश. फिशेस, क्रेफिशेस. ओके, अभी इसको हम डायग्राम से समझते हैं. रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, उनकी क्षमताओं को एक ग्राफ बनाते हैं. दिस इज द ग्राफ. ओके, सो इन दिस ग्राफ वी आर गोइंग टू show different type of organisms जिनका internal body environment constant है, उसको तो हम regulators कहेंगे. ये देखिए, ये आ गया regulator. ओके, नेक्स्ट जो काफ़ी हद तक कांस्टेंट रख सकते हैं, उसके बाद इनका इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है. तो इसी को हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स. Okay, these are
partial regulators. एंड जिनका कंट्रोल नहीं हो सकता उनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं. Just like that, as per the change in the external condition, इनका internal condition, internal atmosphere भी change होता रहता है. उनको हम conformers कहते हैं. So आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन दिखाई दे रहे हैं. ओके, ये इंटरनल लेवल को शो कर रहा है. इंटरनल लेवल, ओके, और ये शो कर रहा है एक्सटर्नल लेवल. As the external level increases, अगर बॉडी का टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल कंडीशन कंटिन्यूअस है, यानी उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मर्स. अगर वो कांस्टेंट बना हुआ है तो उसे रेगुलेटर्स कहते हैं. कुछ टाइम तक ये चेंज होते हैं, उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स. सो दिस इज द diagrammatic representation of different type of organismic responses. ठीक है.